جی عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کتاب اردو سے پہلا سبق، جس کے 2 پیراگراف ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اس سے آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے معانی کیا ہیں۔ اس لیے ان کو پہلے سے تحریر کر لیا ہے تاکہ ہر جملے اور فقرے کی پوری طرح سمجھ آ جائے اور اس کی تشریح لکھتے ہوئے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تیسرا پیراگراف، انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شخصی نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے، جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ اچھا طلباء، یہ ذہن نشین رکھیے کہ میں نے جو الفاظ کے معانی تحریر کیے ہیں، میں ان کی مزید وضاحت بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو زیادہ وضاحت طلب ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بات کرتے ہیں ہر طبقہ، ہر نسل انسانی کے لیے، ان میں جتنی اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانوں کی بہت سی اقسام دنیا میں ہیں، اس پہ بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں، اور انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے، یہ ہے نصیحت پذیری، نصیحت حاصل کرنا۔ درس کا لفظ میں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں، چھانا پھٹکا ہوا سبق۔ یاد رکھیے، یہ جو ہم روٹی پکانے سے پہلے آٹے کو چھان لیتے ہیں تاکہ اس میں اگر کوئی کنکر پتھر ہے تو وہ علیحدہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ کنکر پتھر کھانے کی چیز نہیں، اس لیے اس کو کھانے والی چیز سے الگ کرنا لازم ہے۔ اس عمل کو کام کی چیزیں الگ کر لی جائیں اور بیکار چیزیں الگ کر کے پھینک دی جائیں، اس عمل کو کہتے ہیں درس، چھانا پھٹکا ہوا۔ اور کامل کے معنی ہے اسے مکمل کر دینا، کامل رہنمائی، مکمل رہنمائی۔ مکمل سے مراد ہے کہ زندگی کے مختلف ادوار میں اسے یہ رہنمائی درکار ہے، بچپن میں، جوانی میں، پختہ عمر میں، بڑھاپے میں، ہمہ وقت اسے رہنمائی درکار ہے کہ اس حوالے سے اب وہ ایک جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس کے ساتھ 10-20 آدمی کام کرتے ہیں اس کے تحت، یا وہ کسی بڑے آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر بڑے آفیسر موجود ہیں، ان کے ماتحت وہ کام کر رہا ہے، اور ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے وہ کون کون سے زندگی کے پہلو مد نظر رکھے کہ بہتر کام بھی سر انجام دے اور ایک صحیح معنوں میں ایمان والا، مومن، مسلمان کہلانے کا حقدار بھی رہے۔ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان میں کامل نمونہ مہیا ہے۔ پہلے تو یہی بات کہ وہ درس کے معنی آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔
दूसरी बात, एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक दौलतमंद के लिए गरीब की जिंदगी कामिल नमूना नहीं, मुकम्मल नमूना नहीं हो सकती। एक गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है, अमीर वैसे नहीं गुजारे। एक अमीर कैसे जिंदगी गुजार रहा है, एक गरीब के लिए नामुमकिन है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हालत में जिंदगी के इन तमाम पहलुओं पर अमल करके दिखाया। याद रहे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत फरमाते थे तो आपके पास इस कदर मालो ज़र था, इतना मालो दौलत इकट्ठा हो चुका था कि आप उसको लोगों के लिए, लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल में लाते और खर्च कर दिया करते, और ये भी ना सोचते कि ये लोग अल्लाह को मानने वाले हैं या नहीं। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से ले लीजिए। मैं और आप या कोई आम सा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो ज़र ना हो, उसके पास लोग लाखों और करोड़ों का मालो ज़र अमानत के तौर पे नहीं रखवाया करते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिसके पास पहले से मालो ज़र हो उसके पास लोग अमानतन कुछ ना कुछ रखवा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक साहिब के पास कोठी है, 2 कारें हैं, अच्छा खासा कारोबार है, और कि मुझ जैसा गरीब शख्स अगर एक छोटा रिक्शा या चिंगची खरीद लेता है, लोडर, उसको रखने की जगह नहीं और वो उसे दरखास्त करता है कि मुझे आपके गैराज में ये रखने दें, ये जानते हुए कि उनके पास पहले से 2 कारें हैं, वो मेरे इस रिक्शे को या चिंगची को बेच नहीं खाएंगे। इस बात से ये अंदाजा कर लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानतें इसीलिए रखवाते थे, वो जानते थे इस शख्स के पास बेबहा दौलत है, इसको कमी नहीं कि हमारा माल हड़प करेगा। और उससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कामिला कि हर अमानत को अमानतदार तक पहुंचाकर दम लेना और मुकम्मल, किसी तौर उसमें कमी बेशी ना आने का, ये वो बुनियाद बनी कि आपको अमीन का लक़ब दिया गया जहां पर जहालत आम थी। तो अल्लाह करीम ने दुश्मनाने इस्लाम के मुंह से भी इस बात को तस्लीम करवा लिया कि बेहतरीन नमूना दौलतमंदी की हालत में भी, और अगर फाका कशी करना पड़े उस हालत में भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी है। इसलिए ज़रूरत है कि आलमगीर और दायमी पैगंबर की ज़िंदगी इन मुख्तलिफ मनाज़िर के रंग बरंग फूलों का गुलदस्ता हो। रंग बरंग फूलों का एक गुलदस्ता, यानी हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देना पड़ते हैं। ऐसी सूरत में, जैसे कि मैंने अभी 2-4 मिसालें दी थी कि एक शख्स ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है और उसके ऊपर भी बड़े ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो वो किस अंदाज से उस काम को सर अंजाम दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मौजूद है। और एक शख्स का अपना बिजनेस है, कारोबार है, और उसके साथ 5, 10, 20 लोग काम करते हैं, उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते रहे और बताया कि अपने हिस्से का काम ज़्यादा सर अंजाम दीजिए और मुनाफा थोड़े से थोड़ा लीजिए। यानी 100 रुपए की चीज़, 100 दिनार की चीज़ को 110 दिनार में बेचते थे, जबकि उसी दौर में दूसरे जो ताजिर थे, तुज्जार, मक्का के मुख्तलिफ लोग जो दूसरे इलाकों में तिजारत करने जाते थे, वो 100 दिनार की चीज़ को 150 दिनार या 200 दिनार का बेचा करते थे। उसी चक्कर में वो बहुत देर से बिका करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थोड़ा मुनाफा, 105 या 110, 100 दिनार की चीज़ 105 दिनार की या 110 दिनार की, अगर थोड़ी सी खराबी है तो बता करके ये खराब है, ये 105 दिनार, वो जल्द से जल्द बिक जाती। अक्सर ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम की 8-10 बोरियां खरीद कर करीब के किसी गांव से लाए जहां तिजारत के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बहरीन, तबूक गए, और वो सुबह लाकर रखी और दोपहर तक वो बिक गई। दोपहर को जाकर मजीद लाना पड़े और शाम तक वो भी बिक गई। तो इस तरह वो 5-5, 10-10 दिनार जो हर 10-20 बोरी के बाद साथ बचते थे, उनका अगर मजमुआ किया जाए तो 30 दिन में वो अच्छी खासी रकम बन जाती है। यानी अपनी मेहनत को ज्यादा शामिल किया और मुनाफे की मिकदार कलील रखी। ताजिरों को अक्ल दी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब जरा देखते हैं, हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, चलना फिरना कैसे है। हमें चलने फिरने का सलीका अता फरमाया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। चलते हुए आपके जूतों की आवाज नहीं आनी चाहिए, जूते घसीटने की आवाज मत आने दें, इससे जहालत
नुमायां होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और जूते घसीट के चलते हैं तो इससे असल में क्या जाहिर हो गया कि अंदर कहीं थोड़ी बहुत जहालत है। उसे निकालिए, जूते पांव उठाकर चलिए, जूते घिसटने की आवाज ना आए। इसी तरह उठते बैठते हम मुख्तलिफ उमूर में उठते बैठते हैं, मसलन नमाज के दौरान भी, उन सब का सलीका हमें अता फरमा दिया, कब कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक एक हरकत के लिए हमें तजवीज़ कर दिया गया। खाना पीना कैसे है, कितना बेहतरीन सलीका, पूरी दुनिया में शायद खाने पीने का इस कदर बेहतरीन सलीका कहीं नहीं दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अपने हाथों से खाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, सब मिलकर खाइए, बरकत होगी। अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए। और अगर ज़्यादा अफराद हैं, मसलन मैं एक छोटा सा वाक़या लाजमी शामिल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया करते थे कि फजर के बाद और अक्सर मगरिब की नमाज से कबल या उसके बाद भी जितने भी नमाजी नमाज के लिए आते थे उनको कहा करते थे कि अपने घर से खाना लेकर आ जाइए और यहाँ मिल बैठ कर खाइए। नमाज पढ़ने के बाद सब मिल बैठ कर खाते। अब जरा सोचिए कितना बेहतरीन तरीका है। एक शख्स के घर में दाल पकी है, एक ने गोश्त पकाया, एक ने सब्जी पकाई है, एक के यहाँ पका कुछ नहीं, सिर्फ रोटी पकी है, और दो चार मस्जिद में मुसाफिर आन ठहरे हैं, उनके खाने का कोई बंदोबस्त नहीं। जब सब लोगों का खाना आएगा तो वो मुसाफिर भी खा लेंगे, जिसके घर दाल पकी है वो भी एक लुकमा गोश्त के शुरबे में लगा सकता है, और जिसके यहाँ सब्जी पकी है वो भी दाल चख सकता है, गोश्त चख सकता है, वगैरह वगैरह। हमें सलीका अमलन दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमें दुनिया में रहते हुए खाना पीना किस अंदाज में है, मिलजुल के खाना पीना है। अफसोस की बात यह है कि ये अमलन मैंने चंद जगह पर, बहुत 2 या 3 जगहों पर ऐसा देखा है पाकिस्तान में, मुझे इसकी ज़्यादा मिसालें नज़र नहीं आई और मैं भी उनका हिस्सा रहा हूँ। ये गालिबन बिहाकी की हदीस में कहीं लिखा गया है, मैंने उसको खुद भी पढ़ा था। इसी तरह सोते जागते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। अब सोना जागना कैसे है, हमें सोने के लिए सलीका अता फरमा दिया। इस दाएं करवट लेटिए और उससे पहले अगर कुल पढ़ सकते हैं, वक्त है, वुजू है, पढ़कर अपने जिस्म पर हाथों पर फूंक कर जिस्म पर मल लीजिए, दाएं करवट लेटिए और अल्लाह का नाम लेकर आयतुल कुर्सी पढ़िए, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए। एक एक बात का सलीका अता फरमा दिया है। जागते हुए सबसे पहले अल्लाह की तस्वीर में आती है, उसका शुक्र अदा कीजिए कि तूने दोबारा हमें ज़िंदगी अता की। और इसमें अगर हम कुरान का मुताला करें तो मालूम होता है कि ये बात दुरुस्त है कि इंसान जब सो जाता है तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें ऐसे कर दिया जैसे तुम मर चुके, और फिर हम तुम्हें ज़िंदगी अता करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उसका शुक्र अदा करना कि उसने फिर ज़िंदगी अता कर दी। कई लोगों को ऐसी सोती हुई हालत में वापस भी ले जाता है। तो हमें ये सलीका दिया कि सोने से पहले याद रखना है कि उसी के हुजूर जाना है। उठते ही सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रहे कि उसी का शुक्र अदा करना है, उसने मजीद जिंदगी अता फरमाई। हंसते भी हैं, रोते भी हैं, दूसरों पर मत हंसिए, मना फरमा दिया। हंसने का अंदाज कितना खूब रहा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में 2 या 3 मरतबा मुस्कुराए हैं कि आपके दांत नजर आए। इससे अंदाजा कर लीजिए कि जिंदगी में कितना हंसना जरूरी है। बल्कि ये कौल मुझे करीने कयास मालूम होता है कि अरब से ही है कि जिंदगी में हंसने की जरूरत इसी कदर है जितना रोटी पकाते हुए आटे में नमक की जरूरत पेश आती है। नमक इतना सा डाला जाता है कि रोटी पक जाए, और अगर वो ज्यादा हो जाए तो रोटी कड़वी हो जाएगी, और अगर नमक ना डाला जाए तो रोटी पक नहीं सकती, फट जाती है। बिल्कुल इसी तर्ज पे जिंदगी में मिजाह का तसव्वुर है, वो इतना सा ही लाजिम है। और रोते भी हैं। रोना किस चीज़ पे चाहिए? यकीन कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इसमें कमाल हमारे लिए रहनुमाई का बाइस है कि हमने ज़िंदगी में किसी मामले में कोई कमी बेशी हो गई, कोई चीज़ ज़ाय हो गई, टूट गई, हाथ से चली गई, दौलत निकल गई, हुकूमत निकल गई, इस पे रोना नहीं बनता। हाँ, अपने बदआमालियों पे अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर रोना बनता है। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद में खड़े होते थे तो अक्सर हिचकी यूं बंधी होती थी
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि यूं लगता था जैसे हंडिया में कुछ पक रहा हो। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हिचकियां बंधी हुई होती थी। क्या हम अल्लाह के हुजूर इस तरह खशियत का एहसास करते हुए रोएं, गिड़गिड़ाएं? कैसे मुमकिन है कि वो रब्बे करीम जो रहीम रहमान है बंदे की बात ना सुने? ये तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीका अता फरमा दिया। पहनते भी हैं और उतारते भी। कपड़ों का पहनना ये बड़ी आम सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। हमेशा पहनते हुए पहले दायां बाजू, पहले दाईं टांग, और उतारते हुए हमेशा पहले बायां बाजू या पहले बाईं टांग, या जूते उतारते हुए पहले बायां जूता उतारा जाए, जब भी पहनना हो पहले दायां पहना जाए। अब जरा गौर कीजिए, हमने पहनना तो हर सूरत है कुछ ना कुछ, जिंदगी में जैसे मर्जी पहन लीजिए। एक तरीका तो ये है जो कि इसलिए गलत है कि इससे वाज़े नजर आता है कि हमारे सामने कोई नमूना नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। और जब हमारे सामने मिसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, आला तरीन नमूना मौजूद हो, तो फिर लाजिम है कि हम उसकी तकलीद करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फिर भी हम पहन लेंगे, उतार लेंगे, और उसके साथ साथ ये सुन्नत रसूल के हवाले से अल्लाह करीम इसको नोट कर, फरिश्ते इसको नोट कर लेंगे। अल्लाह करीम के हुजूर ये बात जाएगी कि इस बंदे ने रसूल अल्लाह की तकलीद में जिंदगी भर पहना और उतारा है, और ऐन मुमकिन है कि वो रहमान और रहीम सिर्फ इसी बात पर कि ये मेरे नबी की तकलीद करते रहे, कोशिश करते रहे, हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं। सीखना और सिखाना क्या है? हम जैसे पढ़ रहे हैं, असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, तुलबा पढ़ रहे हैं। तुलबा के लिए अगर मैं मिसाल दूं, जैसे सूरह अनफाल में आयत नंबर 20 के करीब भी, 20-21 में भी ये बात दोहराई गई। ये 2 तरीके दिए गए हैं। अगर तुम नबी की बात सुन लेते तो ये मत कहो हमने नहीं सुनी, उससे मुंह ना फेरो। और अगर तुमने नबी की बात नहीं सुनी और आपस में बातों में लगे हुए हो, और बाद में नबी पूछे सुन लिया, तो कहो हाँ हमने सुन लिया। ये भी गलत तरीका है। सीखने का अमल ये है, ऐसा ना करना, गौर से सुनना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मुअल्लिम है, खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो सिखाते कैसे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को 2 या 3 मरतबा दोहरा दिया करते। आवाज़ बड़ी धीमी होती। अक्सर ऐसा होता कि पीछे बैठे साहबा हाथ के इशारे से कहते कि ये सुना नहीं गया, ज़रा दोबारा इरशाद फरमाते। हुजूर ज़रा थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा फ़र्क डालकर दोबारा इरशाद फरमाते, ताकि सबके कानों में वो बात चली जाए जो वही इलाही अल्लाह ने भेजी है और कोई उससे महरूम ना रहे। तो सीखने और सिखाने के अमल में लहजा नर्म, और हमेशा सिखाते हुए दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा कभी एतराज़ ना किया जाए कि अब क्यों बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये तालिब इल्म का हक है कि अगर उसे पहली या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा समझ नहीं आया, वो दोबारा अगर दरख्वास्त पेश करता है कि मुझे दोबारा बता दीजिए, तो उस्ताद का काम है वो दोबारा बताएगा। मरते भी हैं, मारते भी। मैदान जंग में हमें जाना है और अल्लाह के रस्ते में ला युवल्लुल अदबार, पीठ नहीं फेरनी, बड़ा उसूल वाज़े दे दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में वो अमली तौर पे दिखा दिया कि दुश्मन ने यकदम जब पीछे से हमला किया तो तकरीबन 40 से 50 के करीब सहाबा को रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अपनी जानें कुर्बान करना पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को बचाने के लिए। क्यों? गलती ये हो गई थी कि जिनको वहाँ खड़ा किया था वो अंदाजे से नीचे उतर गए कि नहीं, शायद हमारा भी अब यहाँ हमारी ज़रूरत बाकी नहीं है। इतनी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं। तो मरने और मारने का सलीका दिया, पीठ नहीं फेरनी। जो हुक्म जर्नैल ने दे दिया, कमांडर ने दे दिया मैदान जंग में, वही हुक्म आखिर समझा जाए, क्योंकि अल्लाह करीम कमांडर की हर बात को पूरा करने की कोशिश करते। खाते भी हैं, खिलाते भी। खाना कैसे है और जब किसी को खिलाना है तो वो कैसे है? कभी भी उसको शुमार नहीं करना कि मैंने खिलाया था, क्योंकि जो खा रहा है उसको रब्बे करीम की तरफ से अता हुआ है, तुम्हारे हाथ से वहां जा रहा है, तुम्हें एक शरफ दे दिया गया है। इस शरफ को इतना सा कहकर ज़ाय ना करो कि मैंने खिलाया। एहसान लेते भी हैं, करते भी। एहसान करने के बाद भूल जाइए,
ज़रूरत पड़े तो कोशिश कीजिए कम से कम एहसान लेना पड़े। यानी मैं सिर्फ इसको एक बात से निपटा देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2, 3-3 दिन फाके भी रहे मदीना पहुँचने के बाद, लेकिन अपने घर के लिए कभी कर्ज नहीं लिया। और असहाबे सुफ़ा के 70 की तादाद को पढ़ाने, खिलाने, पिलाने के लिए अक्सर औकात कर्ज लेना पड़ता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजानची थे और सब कुछ तहरीर किया करते थे। बिलाल ये लिख लो इतने पैसे फलां शख्स से लिए हैं, इसको जब माल आएगा तो वापस लौटाने हैं। और कई दफ़ा कर्जदार बार बार कर्जे का इजहार करते वापस मांगने का, तो हज़रत बिलाल शर्मिंदा होते और अक्सर कहा कि या रसूलल्लाह ये खजानची का लिखा हुआ मेरे हाथ से वापस ले लीजिए, मुझसे नहीं ये हो सकता। तो रसूलुल्लाह ने हमेशा मुस्कुरा कर फरमाया, बिलाल ये काम सिर्फ तुम ही करोगे। तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, हज़रत बिलाल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजानची थे। हत्ता कि बाग़ फिदक से 50,000 दीनार आते थे। यानी उस ज़माने में 2 दीनार का 1 तोला सोना आ जाता था। 25,000 तोले सोना के बराबर साल बाद वहाँ से बाग़ फिदक से रकम आती थी। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कर्ज खाम का कर्ज अदा फरमाते, असहाबे सुफ़ा के लिए थोड़ा सा सामान ले आते 1-2 दिन का, और ज़रूरतमंदों को सब तकसीम कर दिया जाता। अपने घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी और अगले दिन सुबह के लिए अल्लाह पर तवक्कुल। हमें सलीका अता फरमा दिया। अफसोस कि हमने तो साल भर का राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ये समझते हो कि हम बड़े ज़हीन हैं। क्या इस वक्त ये नुक्ता हमारी समझ से निकल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? 25,000 तोले सोना आज आया है और सुबह मेरे पास नहीं। यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी का अमली नमूना। और ये भी नहीं कि उसमें से कुछ माल रख लिया होगा अपने लिए, कतई नहीं। अच्छा जी, अपनी जान देते भी हैं, बचाते भी हैं। जान कब देनी है? सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को बचाने के लिए अगर कुर्बान करना पड़े तो शहीद का दर्जा है बहुत बड़ा, और दूसरों को बचाने के लिए भी कुर्बान करनी पड़े तो कोई बात नहीं। इबादत दुआ भी करते हैं। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका सलीका अता फरमा दिया। मेहमान बनते हैं, मेज़बान बनते हैं। मेहमान नवाजी क्या है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने का मौका मिलता है। मेहमानों को कभी भी अपने ऊपर बोझ तसव्वुर ना कीजिए। यकीन कीजिए इसमें 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने इसको ज़िंदगी भर अमली तौर पे करके देखा है। मेहमान नवाजी में जो लज्जत रखी है अल्लाह करीम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक ने, वो कमाल है। कभी भी उसमें इंसान के दिल पर बोझ नहीं आता अगर दिल से खुशी के साथ मेहमान नवाजी की जाए। रब्बे करीम खुश होते हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या काबिल कबूल है, समझ में भी आता है कि बड़े काम की बात है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए कि हुजूर मेरे घर में अक्सर मेहमान आते जाते हैं और हफ्ते के 7 दिन मेहमान आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो मेरी बीवी खाना पका के तंग आ चुकी है और वो नहीं चाहती कि इतने मेहमान आए। उसको दिन रात खाना पकाना पड़ता है सुबह शाम मेहमानों के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, उसको कहो कि कल हम आएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ मेहमान बनकर चले गए। और जब खाना तनावुल फरमा चुके तो वहाँ से रुखसत होने लगे और कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ तुम देख लो ये किसी को अभी बताना नहीं, वापस मेरे पास पहुंचना फिर बात करेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तशरीफ ले गए तो दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि बहुत से सांप, बिच्छू और इस तरह के मूजी जानवर घर से निकलते चले जा रहे हैं और वो उन सहाबा के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। वो बेहद हैरान भी हुए और डर भी गए। खैर कुछ देर के बाद वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अर्ज की कि या रसूलल्लाह हमने ये देखा। तो मैं देखो मेहमान नवाजी करने से इतना कुछ घर से जो मूजी होता है निकल जाता है और तुम आज़ाद हो जाते हो, आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकते हो। और मेज़बानी का तरीका बता दिया। मेहमान बने तो किसी के ऊपर ज़्यादा बोझ न डालें, फरमाइश मत करें मैंने ये खाना है, जो पका है उसे खुशी से तनावुल कर लें। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलीका था। जी, हमें हर मुख्तलिफ हालत में कहीं ना कहीं इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बेहतरीन सलीका अता फरमा दिया। अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं।
علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں. اعمال قلب، میں نے یہ لفظ یہاں لکھا ہوا ہے دلی کا. اب دل کا کیا کام ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کا کام صرف خون کا پمپ کرنا ہے. جی، ارادہ جو ہے یہ دلی کام ہے. کسی بھی کام کا ارادہ، میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، اکیڈمی ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اور اگر ارادہ موجود نہیں کہیں نہیں جائیں گے. تو یہ دل کے جو اندر موجود طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کام کی طرف توجہ کرتا ہے اور دماغ کی قوت کو استعمال میں لاتا ہے، وہ بنیادی دل ہی کی ہے، اس کا ذکر ہے یہاں. اور جن کی تعبیر ہم ہمارے قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں. ہر آن، ہر لمحے ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب. ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں. انسان کی یہ خامی ہے کہ وہ جذبات کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے اور جذبات کی وجہ سے کئی مرتبہ غلط فیصلہ بھی کر بیٹھتا ہے. اس کو روکنے کا طریقہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے. یہ بالکل معتدل ہونے چاہیے، درمیان میں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی. ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے. عملی سیرت، طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، حاجت، ضرورت ہے. ہم اس ضرورت کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ، جو اقوام، جو قومیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اور جیسی پل بڑھ کے جوان ہو گئی ویسے ہی کافی ہے، وہ بعد میں بہت تکلیف اٹھاتی ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، ایک بہترین نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر مختلف تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جذبات میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. جب آپ نے سیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبات کو کنٹرول رکھ کے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ غصے میں ہیں تو بھی، ناراض ہیں تو بھی، خوش ہیں تو بھی اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے. یہ ہے وہ سلیقہ جس کی وجہ سے انسان کوئی فیصلہ کرتے ہوئے غلطی نہیں کرتا. غصے کی حالت میں، ناراضی کی حالت میں انسان لازمی غلط فیصلہ کر لیتا ہے. جذبات میں آ کر فیصلے اکثر غلط ہوا کرتے ہیں. تو فیصلے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ دیا جائے. یہ سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے. میں صرف 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں. غزوہ بدر سے پہلے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ دشمن لڑنے کے لیے تیار ہے اور ہمیں کس طرح سے لڑنا چاہیے. آیا ہم شہر میں رہ کے لڑیں، شہر سے باہر جا کے لڑیں، یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. نبی تھے، وقت کے رسول تھے، خود بھی حکم دے سکتے تھے. نقطہ بڑا قابل غور ہے. کوئی حکم نہیں صادر فرمایا، مشورہ مانگا اور پھر مشورے کے مطابق اس کو حل کیا. اس طرح غزوہ احد کے وقت بھی مشورہ مانگا اور مشورے کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی. غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا مشورہ دیا کہ ہمارے شہر پر جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو ہم سے کئی گنا بڑا ہوتا تو ہم شہر کے گرد خندق کھود لیتے تھے اور دشمن باہر بیٹھا رہتا تھا. اس طرح وہ تھک ہار کر چلا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فوراً قبول کیا. جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں دیا کہ نہیں نہیں ہم تو لڑیں گے، لڑنا ہی بہادری کا کام ہے. نہیں، دشمن سے لڑنا ہے. اب اس میں بہادری کیا ہے کہ آپ اپنی ساری قوم کو کس طرح سے بچا کر فتح حاصل کر سکتے ہیں اور دشمن بھی کمزور پڑ جائے. یہ وہ حکمت عملی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے لے کر استعمال میں لا کر کے دکھا دیا کہ ہمیشہ جذبات کو ایک طرف رکھ کے سوچ سمجھ کر دل اور عقل کو اچھی طرح پرکھ کر اس میں صحیح فیصلہ ڈھونڈا جائے. یہی اخلاق فاضلہ ہے. فاضل اخلاق یہ ہیں کہ بہترین اخلاق، یعنی کسی قسم کے فالتو جذبات شامل نہ ہوں. میرا یہ خیال ہے، میرا یہ احساس ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، میرے جذبات ایسے، میرے احساسات ایسے ہیں. یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیا جائے. تو اس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قسم کے جذبات، احساسات کو اعتدال پہ رکھنے کا سلیقہ عطا فرما دیا. مومن کی نشانی یہی ہے، وہ معتدل ہوتا ہے، اعتدال پسند ہوتا ہے.
آج کے لیے ہم نے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، ان کے کچھ الفاظ اور معانی ہیں، میں ان پہ بھی مزید بات کر لیتا ہوں۔ عالمگیر دنیا بھر کے لیے دائمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ لیے ہوئے ہے۔ امور امر کی جمع ہے، مختلف کاموں کو کہتے ہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں۔ اب یہ جسمانی افعال جسمانی کام، بدنی کام، علاوہ نہیں اس کے علاوہ ہمارے قلب دل کے کام، ہم جانتے ہیں دل میں کتنے ارادے اٹھتے ہیں، میں یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، ایسا کر لوں، ویسا کر لوں، تو یہ ارادے دل کے ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ غم زدہ دکھی، مصائب مصیبت کی جمع ہے، اور دو چار ہونا، واسطہ پڑھنا، آمنے سامنے ہونا، ماتحت کسی کے نیچے کام کرنا، اخلاق فاضلہ بہترین اخلاق، اعتدال معتدل سطح، بالکل درمیانہ رویہ، نہ بہت زیادہ جذبات نہ بہت کم، جتنے ضرورت ہے اتنے ہی، باقاعدگی تسلسل سے، سیرت زندگی کا طریقہ اور حاجت ضرورت، ہمیں اس کی بالکل ضرورت ہے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین کیجئے وہ زندگی میں بہترین کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔